Hi everyone, this is your biology class. I'm your teacher Seema Atreja. Students, we are going to start chapter 5, that is fundamental unit of life. Everybody knows fundamental unit of life is the cell. Why we called it as fundamental unit of life or basic unit of life? We all know life of the living organism depends on the activities of the cell. If the cell is performing activity, the person is alive, the plant is alive. It means living organism depends for their life on the activities of the cell. If the cell is not doing any activity, the cell is dead and the living organism also dead. That's why we call the cell as the fundamental unit of life or basic unit of life. Without cell we cannot exist. In this chapter, first we are going to discuss some discoveries. The first scientist I am going to discuss here is the Robert Hooke in 1665, जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप ने एक कॉर्क के स्लाइस को एग्जामिन किया था एंड ही कॉल्ड इट एज सेल. एक्चुअल में कॉर्क क्या होता है? कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री की बार्क से हमें कॉर्क मिलता है. तो उन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और उसको उन्होंने सेल कहा. एक्चुअल में जो कॉर्क में सेल्स होती है वो डेड सेल्स होती हैं, बट दैट टाइम सेल्स का कोई आइडिया नहीं था. तो रॉबर्ट ब्राउन ने कॉर्क सेल्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और उसको उन्होंने सेल नेम दिया. अभी तक हम लिविंग वर्ड बायोलॉजी में सेल वर्ड ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के लिए यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट डिस्कवरी वॉज डन बाय द ल्यूवेनहॉक इन 1674. ही डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम. उन्होंने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था. माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक सेल विच इज़ प्रेजेंट इन द पॉन्ड वाटर उन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व की थी. Next scientist, that is Robert Brown. In 1831, he discovered nucleus in the cell. What is the basic structure of a cell? Everybody knows there is a outer covering present, that is known as the plasma membrane or cell membrane, and in the center of the cell nucleus is there, which is the controlling center of the cell, which control the entire activity of the cell. And around the nucleus there is present cytoplasm, and in the cytoplasm what is there? Some cell organelles are there, which we will discuss later on in this chapter. So Robert Brown was the scientist in 1831 who discovered nucleus in the cell, which is present in the center of the cell. Now we discuss the three more scientists. That is, first one is the Schleiden. He worked in 1838. Schwann in 1839. They presented the cell theory. They do not work together. उनका इंडिविजुअल वर्क था, अलग अलग उन्होंने वर्क किया और अपने वर्क के बेसिस पर सेल थ्योरी दी. व्हाट इज सेल थ्योरी? दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. This was the cell theory which was given by the Schleiden and Schwann. Later on, one more scientist, that is Virchow, in 1855, they presented their work. They elaborate the cell theory. उन्होंने cell theory को elaborate किया था. Cell theory में उन्होंने एक point और add किया था. According to Virchow, he gave the line omnis cellula e cellula. Omnis cellula e cellula. What the meaning of this line? That is, all the cell arising from the pre-existing cell. All the cell arising from the pre-existing cell. So there were three scientists, Schleiden, Schwann and Virchow, जिन्होंने अपना इंडिविजुअल वर्क किया और सेल थ्योरी को दिया. What is cell theory? That is, cell is the structure and functional unit of life. This was given by Schleiden and Schwann. Virchow added one more point, that is omnis cellula e cellula, which mean that is all cell arises from the प्री एग्जिस्टिंग सेल. जितनी भी सेल नेचर में प्रेजेंट है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं. अगर हम ऑब्जर्व करें लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो व्हाट वी ऑब्जर्व, एवरी सेल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी जो शेप एंड साइज होता है वो सब अलग अलग होता है. दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर. उनका जो शेप और साइज है सब अलग अलग होता है. नेचर में हम अगर ऑब्जर्व करें तो दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, यूनिसेलुलर
and multicellular. What do you mean by unicellular organism? Their body is made up of single cell, and single cell is performing all the activities of the body. For example, amoeba and paramecium, they are unicellular protozoans and single cell performing all the activities of the cell. Chlamydomonas is algae. It is also single celled, performing all the activities of the body. इसी तरह से नेचर में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. लॉट्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी. फॉर एग्जांपल फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स. बट जब हम इन सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी सेल का जो शेप एंड साइज़ है वो सेम नहीं होता. वो अलग अलग होते हैं. अलग अलग दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी. और जब सेल्स बनती हैं दे आर ऑल अलाइक, बट लेटर ऑन उनमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, वो मैच्योर हो जाती हैं. मैच्योर होने के बाद वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं. तो इनसाइड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स आर देयर. उनका जो शेप और साइज़ है वो अलग अलग होता है. जैसे कि यहाँ पर कुछ सेल्स मैंने ड्रॉ भी किए आप लोगों के लिए. दैट इज स्मूथ मसल सेल्स जो मूवमेंट में इन्वॉल्व है. ब्लड सेल्स जो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं. फैट सेल्स, फैट स्टोरिंग सेल प्रेजेंट इन द बॉडी. स्पर्म एंड ओवम पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन. दीज आर द नर्व सेल्स जो इंफॉर्मेशन को रिसीव और ट्रांसफ़र करने में रोल प्ले करते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी शेप और साइज़ अलग अलग होते हैं. इनका शेप और साइज़ अलग अलग क्यों होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर प्रेजेंट होती है. डिवीज़न ऑफ लेबर का क्या मीनिंग है? जब सेल्स बनेंगी दे आर अलाइक, उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन. They are performing different function, and according to the function they perform, their shape and size डिफ्रेंशिएट फ्रॉम वन अनदर. स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बॉडी में उनका जो शेप और साइज़ है वो अलग अलग हो जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन उनकी शेप और साइज़ बॉडी में प्रेजेंट होती है. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर प्रेजेंट है. जैसे डिवीज़न ऑफ लेबर बॉडी की डिफरेंट सिस्टम जैसे कि हमें प्रेजेंट है बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग में. जैसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट बॉडी के अंदर पंपिंग एक्शन को शो करता है. पंपिंग ऑर्गन क्यों बोलते हैं हम हार्ट को? ये पंप करता है किसको? ब्लड को पंप करेगा, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर, और बॉडी में सर्कुलेट होकर वो यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल हर सेल को सप्लाई करता है. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द हार्ट. बट अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करके मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो फूड को डाइजेस्ट करने में रोल प्ले करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जहाँ पर इंपॉर्टेंट डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है. इसी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, जिसमें किडनी मेन ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करने में रोल प्ले करते हैं. तो बॉडी में डिफरेंट फंक्शन है जिसमें डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट, डिफरेंट फंक्शन, आई थिंक डिफरेंट बॉडी सिस्टम प्रेजेंट हैं जो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने में रोल प्ले करते हैं. दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो प्रेजेंट विद इन द सिंगल ऑर्गेनिज्म और नॉट? यस, सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होती है. डिवीजन ऑफ लेबर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कैसे प्रेजेंट होती है? सिंगल सेल की बॉडी बनी हुई है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन व्हाट इज देयर, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं. कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के नाम यहाँ पर लेते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? एवरीबडी नोज इट इज़ द पावर ऑफ द सेल. इसमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं. दूसरी सेल बॉडी अगर हम राइबोसोम लें तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है. तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है, बट सेल ऑर्गेनेलीज लेवल पर दे परफॉर्म द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन.
So division of labor is also present in case of living organism which are made up of single cell. It is interesting that all cells are found to have the same organelles. हर सेल के अंदर सेम टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन. किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म में कोई भी सेल है उसमें सेम टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होंगी, चाहे उस का कोई भी फंक्शन बॉडी के अंदर है. दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो. नेक्स्ट कंसेप्ट of this chapter we will discuss in our next video. Thank you so much.